विज्ञान की कक्षा 7वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत 2 इसके तीसरे अध्याय का अध्ययन करेंगे। अध्याय का नाम है दिल्ली के सुल्तान, द दिल्ली सुल्तान, भाग 2। हमने पहले भाग में दिल्ली के प्रारंभिक शासकों के बारे में हमने अध्ययन किया। हमने ये पढ़ा कि दिल्ली पे सबसे पहल तोमरों ने शासन किया, जिनके जो प्रसिद्ध शासक थे अनंगपाल। उन्होंने 1130 से लेकर 1145 के बीच में शासन किया। फिर चाहमान आए, उनका शासनकाल 1165 से लेकर 1192 तक था। फिर गुलाम वंश या मामलुक वंश के शासक आए, जिन्होंने 1206 से लेकर 1290 के बीच में शासन किया। और उनके जो प्रसिद्ध शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन थे। बाद में खलजी वंश आए, जिनका शासनकाल 1290 से लेकर 1320 तक था। फिर तुगलक वंश आए, जिनका शासनकाल 1320 से लेकर 1414 तक आए। बाद में सैयद वंश आए और आखिरी थे लोधी वंश, जो कि अफ़गान मूल के थे, 1451 से 1526 तक। See, dear children, in the previous part of this lesson, we had learned about the former rulers of Delhi. The Tomras were the first among who made Delhi as their capital, whose rule was up to 1165 AD. And Anangpal was the famous ruler of Tomar dynasty, who ruled between 1130 to 1145. Then after that Chauhans came, who ruled between 1165 to 1192, and the famous king of the Chauhan dynasty was Prithviraj Chauhan III, who ruled between 1175 to 1192. Then the Turkish emperor came in India, who laid the foundation of the Sultanate rule. The first among them were Slave dynasty or Mamluk dynasty, who ruled between 1206 to 1290, and the famous sultans of this slave or dynasty or the Mamluk dynasties were Kutubuddin Aibak, Shamsuddin Iltutmish, Razia Sultan, Gayasuddin Balban. After that came Khalji dynasty. They ruled between 1290 to 1320. After Khalji dynasty, then Tughlaq dynasty. They ruled between 1320 to 1414. After that, Sayyid dynasty, and the last one was Lodi dynasty, who ruled between 1451 to 1520. The first 4 dynasties, that is the Slave dynasty, Khalji dynasties, Tughlaq dynasties, and Sayyid dynasty, they belong to Turkey, whereas the Lodi dynasty, they belong to Afghan. This much we had yesterday learned. We had also learned about the establishment of few cities which were established near Delhi, like Siri, Jahanpana, Tughlaqabad, Delhi-e-Kuna, etc. Now let us now proceed further. आइए हम अब आगे के पाठ के बारे में पढ़ें। तवारीख। सल्तनत कालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है तवारीख। तवारीख एक फारसी भाषा का शब्द है जो तारीख से बना है। तारीख का अर्थ है तिथि, जिसको हम डेट भी बोलते हैं। तारीख का बहुवचनी शब्द है। तवारीख का सामान्य अर्थ है इतिहास, जिसे फारसी भाषा में लिखा जाता था। तवारीख, an important source to know the history of the Sultanate period is Tawarikh. Tawarikh is derived from the Persian word Tariq. Tariq means a date. Tawarikh is the plural term for Tariq, that is date. Tawarikh means history,
which was written in Persian language about the chronological events of the past, and this is one of the important source to know about the past. तवारीख यानी इतिहास जो लिखा जाता था वो बीते हुए समय को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। हमने कक्षा छठी में हमने ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हमने पढ़ा, जैसे सिक्के, इमारतें, पत्थर इत्यादि, चित्रकला इत्यादि। उसी तरह से तवारीख भी इतिहास को जानने का एक माध्यम है। ये जो अलग अलग लेखक जो तवारीख लिखते थे, यानी इतिहासकार जो इतिहास लिखते थे, वो उस बीते हुए समय को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। और ये जो तवारीख के जो लेखक हैं वो फारसी भाषा में बीते हुए समय के बारे में डायरिया लिखते थे, और ये सल्तनत काल से ये ज़्यादा प्रचलित हुए, इसीलिए सल्तनत कालीन इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है तवारीख। The writers of the tawarikhs used to write a brief chronology, or you can say a diary about the past, and it is one of the important source to know about the history of the Sultanate period. History of the Sultanate period, beside other material sources of history. तवारीख के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारी जैसे बुद्धिजीवी लोग होते हैं। ये घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों को प्रशासन संबंधी सलाह भी देते थे। उदाहरण फ़ख्र ए मुदब्बिर और मिन्हाज ए सिराज, ये जो तवारीख लिखने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जो अपने सुल्तान को समय समय पर राजनीतिक सलाह भी देते थे। तवारीख के लेखक अक्सर नगरों में रहा करते थे, कैपिटल्स में रहा करते थे, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। वे अक्सर इतिहास सुल्तानों के विषय में ही लिखा करते थे, यानी सुल्तानों की प्रशंसा में ही वे बड़े बड़े लेख लिखते थे, और ये इस आशा से लिखते थे कि सुल्तान उन्हें खुश होकर बहुत सारा इनाम देंगे। ये लोग सुल्तान से ढेर सारे इकराम पाने की आशा में लिखते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार, लिंग भेद पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की सलाह भी देते थे, यानी ये शासक को शासन करने का ये जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि वो क्षत्रिय घराने में पैदा हुआ है, इसलिए वो अधिकार उन्हें जन्मता है। वैसे ही लिंग भेद आधारित सामाजिक व्यवस्था, हमने अभी पिछले ही भाग में पढ़ा कि किस तरह से रज़िया सुल्तान को उन्हीं के दरबारी मंत्रियों ने अस्वीकार कर दिया। एक स्त्री का खुले मुंह घूमना, उन्हें पुरुषों की तरह उनके द्वारा पुरुषों की तरह कपड़े पहनना रज़िया सुल्तान का इन्हें नागवारा गुजरा, और एक स्त्री उन पर हुकूमत करे ये भी उन्हें पसंद नहीं था। तो इस तरह से इन्होंने ये पैरवी की कि लिंग भेद आधारित समाज, स्त्रियों के कार्य अलग होने चाहिए, पुरुषों के कार्य अलग होने चाहिए, और ये स्त्रियों को पुरुषों के समानता का दर्जा देने के पक्ष में नहीं थे। लेकिन इस विचारों से सभी के सभी सहमत नहीं थे, उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं थे। ये देखिए, ये फ़ख्र ए मुदब्बिर के द्वारा लिखा गया एक लेख है, जो राजा को सलाह देते हुए लिखा गया है। 13वीं सदी के इतिहासकार फ़ख्र ए मुदब्बिर ने लिखा था, राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुका सकेंगे जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। ऐसा तभी हो सकता है जब राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। यानी इस लेख में फ़ख्र ए मुदब्बिर राजा को न्यायप्रिय, ईमानदार, कुशल प्रशासक
प्रशासक ये होने की सलाह देते हैं। राइटर्स ऑफ तवारीख, द ऑथर्स ऑफ तवारीख यूज्ड टू बी इंटेलेक्चुअल लाइक सेक्रेटरीज, administrators, poets and courtiers. They would also narrate events and give administrative advice to the rulers. For example, Fakhr-e-Mudbir and Minhaj-e-Siraz, those were the writers of the contemporary period, and they used to give the advice to their sultanate, how to rule, how to maintain an administration like that. The authors of Tawarikh lived in cities, especially in the capital city, that is Delhi. They often wrote about histories of sultanate in hope of rich rewards. Because when they live in the village, there were no one to praise their talent. Only the riches or the sultan himself, he acknowledged their intelligence. That's why these intellectual people often became a habitat of the capital city, where the sultan used to live. What for? In an expectation of big souvenir from the sultan. They often wrote about the history of sultan in hope of rich reward, that is a souvenir. These authors often advised rulers on the need to preserve an ideal social order based on birthright and gender distinction. See, children, we have learned in the earlier part of this lesson how Razia Sultan was assassinated in 1840 by their own courtier. The courtiers, the male courtier can't digest the idea of a woman ruling over them. That's why they opposed Razia Sultan and finally assassinated her from the throne of Delhi, like that. The circle of justice. See, Fakhr-e-Mudbir wrote in 13th century, a king cannot survive without soldiers, and soldiers cannot live without salaries. Salaries come from the revenue collected from peasant, but peasant can pay revenue only when they are prosperous and happy. This happens when the king promotes justice and honest governance. See, in this scribe, Fakhr-e-Mudbir advises to the sultan that he should be honest. He should dispense justice to their citizen. He should keep the soldiers of his territory happy, and he should offer a lump sum salary to the soldier. And he, on the other hand, he should also take care of the peasant who used to produce food for the entire population. By doing so, his territory, his kingdom will prosper day in and day night. So this way, the writers, the authors of the Tawarikh used to give advice to their sultan from time to time. पांडुलिपियाँ भी इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, लेकिन पांडुलिपियाँ तैयार कैसे की जाती है, हम इसके 4 चरण के बारे में पढ़ेंगे। देखो, उस वक्त पहले के ज़माने में पांडुलिपियाँ भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। कालांतर में चीन से कागज़ की तकनीक की जानकारी प्राप्त हुई। भारत में भी कागज़ बनाए जाने लगे, और कागज़ बनाने के लिए जो है उस वक्त मशीनें नहीं थी, हाथों से ही कागज़ तैयार किया जाता था। उस समय का कागज़ लगभग मोटा था। फिर लेखन कार्य, कागज़ पहला स्तर है पांडुलिपि को बनाने के लिए हाथ से कागज़ तैयार करना।
दूसरा है लेखन कार्य, यानी लिखना, लिखने के लिए भी अलग अलग प्रकार की स्याहियों का इस्तेमाल किया जाता था और ये स्याही फूलों के रस से, पत्तियों के रस से, धातुओं से ये जो है स्याही बनाई जाती है, रंग बनाया जाता था। महत्वपूर्ण शब्दों और अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग किया जाता है, यानी कुछ शब्दों को अगर हाईलाइट करना होता था तो वहाँ पर सोने के पानी का भी प्रयोग किया जाता था। और बाद में जिल्द यानी कवर, जो कवर और जैकेट कवर जो किताब का, पांडुलिपि का, वो तैयार करना। तो इस तरह से पांडुलिपियों को तैयार करने के ये 4 स्तर थे। देखिए इस चित्र में आप देख सकते हैं, ये पहला चित्र हाथ से कागज़ तैयार किया जा रहा है, बाद में यहाँ पर स्याही चयनित की जा रही है, यहाँ पर सोने को पिघलाकर किसी शब्द को हाईलाइट करने के लिए करने के लिए उसको पिघाला जाता है और अंत में यहाँ पे किताब को जैकेट चढ़ाया जाता है, यानी उसको कवर चढ़ाया जाता है। Look at this figure carefully. In this figure, you are told that how the manuscripts are prepared. What are the stages of preparing manuscript? First of all, a handmade paper is developed. Paper is manufactured. After that, an ink is selected. That particular ink may be derived from the juice of the flowers, juice of the leaves, some metals like that. If the writer want to highlight some passage, some word, then he would use the gold. By melting the gold, he would use the liquid or the molten form of the gold to highlight particular phrase or particular word. After that, a jacket cover is prepared for the manuscript. These are the 5 stages of preparing any manuscript. Procedures of preparing manuscript. Right now we have learned the process of the preparing manuscript through pictures. Now in words, 4 stages in the making of manuscripts are involved. Number 1, preparing the paper, that is the handmade paper. Writing the text means writing ink, selecting one particular ink. Melting gold to highlight important words and passages, and last one, preparing the binding. So these were the 4 stages for preparing of any manuscript. गैरिसन शहर से साम्राज्य तक, फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर। सबसे पहले हम गैरिसन शब्द की जानकारी प्राप्त करें, गैरिसन और उससे जुड़े तत्सम शब्दों की, तत्सम संदर्भों की जानकारी प्राप्त करें। गैरिसन शहर वो होता है जो सुल्तानों की किलेबंद राजधानी और सैनिकों की छावनियों को गैरिसन कहते हैं। यानी सुल्तानों की किलेबंद राजधानी और सैनिकों की छावनियों को हम गैरिसन शहर कहते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के जैसे उदाहरण दे सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित एक गैरिसन शहर सिरी, जो कि दिल्ली के आसपास है, दिल्ली में है। भीतरी शहर, यानी इसको इंग्लिश में हिंटरलैंड भी बोलते हैं। भीतरी किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करता हो, उसको हम भीतरी शहर कहते हैं। यानी भीतरी शहर क्या है? ये एक सल्तनत का ही भाग होता है और ये राजधानी से दूर होता है, जो कि इस राजधानी के में रह रहे सैनिक छावनियों के लिए और वहाँ पर रह रहे अधिकारियों के लिए रसद की आपूर्ति करता हो, खाद्य सामग्री की आपूर्ति करता हो और अन्य ज़रूरतों की आपूर्ति करता हो, जैसे लोहा, तलवार, तीर, भाले बनाने के लिए लोहे की आपूर्ति करना, धातु की आपूर्ति करना, चमड़े का आपूर्ति करना, अनाज की आपूर्ति करना। तो ये भीतरी शहर। बाहरी शहर, दिस इज़ द आउटर टेरिटरी, यानी वो इनके नियंत्रण के बाहर है। बाहरी प्रदेश वे प्रदेश है जो सल्तनत के भाग तो थे
परंतु इन पर सल्तनत का नियंत्रण बहुत ही कमज़ोर था। इसमें अफ़गानिस्तान आ सकता है, इसमें बंगाल प्रांत है जो दिल्ली से काफ़ी दूर है। उदाहरण सिंध और बंगाल के गैरिसन शहर। युद्ध, विद्रोह, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके साथ सल्तनत का संपर्क टूट जाता था। इनसे निपटने के लिए अलाउद्दीन और मोहम्मद तुगलक ने सुदृढ़ नीति बनाई। तो ये है भारी शहर। तो हमने 3 संदर्भों के बारे में पढ़ा। गैरिसन शहर यानी सल्तनत की राजधानी, भीतरी शहर राजधानी से लगे हुए वे इलाके जो राजधानी के लिए ज़रूरी सामग्री की आपूर्ति करता है, और ये तीसरा भाग बाहरी प्रदेश, ये वो सिंध और बंगाल में स्थित वे प्रदेश जो इनके नियंत्रण से बाहर थे। Garrison city, the fortified capital of Sultan and military cantonments are called garrison cities. Garrison city, for example, the garrison city of Siri, founded by Alauddin Khalji. It is a type of the cantonment type where the complete army used to live. And in case of any invasion, they marches towards that particular area. Now hinterland, the areas around a city or a port that supply goods and services for that city. Hinterland means those lands which were a part of the Sultanate, which provides all sort of the logistic to the cantonment area, like iron ore, like all kinds of metals, all kinds of leathers, food grain supply for their army, like that. So this is a type of a logistic unit who used to supply logistic to the garrison city. Outlying territories, the territories which were part of Sultanate, but the control of the Sultanate was very weak over them. For example, Sindh and Bengal. For example, Sindh and the garrison cities of Bengal. The Sultanate lost contact with them through war, rebellion, and even bad weather. Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq form a strong policy to deal with them. They have cleared the forest in between Ganga and Doab regions. They have removed the tribal people from that area. They have developed a huge army to counter attack the rebellion. Like that, they have adopted a policy to keep these outlying territories under their सुप्रीम कंट्रोल. गैरिसन शहर, ये देखो, ये इल्तुतमिश के शासन के दौरान ये जो है गैरिसन शहर और उसके आसपास के इलाके दर्शाए गए हैं. दिल्ली ये गैरिसन शहर है, और उसके बाद उसके जो पड़ोस में जो भी शहर है वो भीतरी शहर है, और बंगाल और सिंध और मुल्तान ये क्या हो गए, बाहरी क्षेत्र हो गए. इस मानचित्र में आप देख सकते हैं. यानी ये दिल्ली क्या हो गया, दिल्ली इज़ ए गैरिसन सिटी. दिस पार्ट इज़ कॉल्ड आउटलाइन टेरिटरीज. यानी ये बाहरी क्षेत्र, और दिल्ली के आसपास के क्षेत्र को हम भीतरी क्षेत्र कहते हैं. ठीक है, या हिंटरलैंड. दिल्ली इट इज़ अ गैरिसन सिटी. Adjoining areas near Delhi, it is a hinterland, and Bengal, Sindh province, and Mongolia, these were known as outlying territories. तेरहवीं सदी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन शहर से कभी बाहर की तरफ नहीं फैला. गैरिसन शहर से बाहर की तरफ कभी नहीं फैला. भीतरी शहरों पर भी उनका नियंत्रण न के बराबर था. उन्हें व्यापार या कर या लूटपाट पर ही निर्भर रहना पड़ता था. दिल्ली से दूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों पर नियंत्रण कठिन था, क्योंकि वहाँ के दुर्गम इलाके थे, घने जंगल थे, दलदली इलाके थे.
तो वहाँ पर उनका नियंत्रण कठिन था। सल्तनत को अफ़गानिस्तान, मंगोलिया के आक्रमणकारियों तथा अपने सूबेदारों से भी नियंत्रण सामना करना पड़ता था। यानी इन सुल्तानों को अपने सूबेदारों को भी नियंत्रित रखने के लिए अच्छा खासा संघर्ष करना पड़ता था। साथ ही में बाहरी आक्रमण होता था। अफ़गानिस्तान और मंगोलिया से उनको भी नियंत्रित करना पड़ता था। तो इनके लिए ये काफ़ी मुश्किल था। गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खलजी, ये दो शासकों के काल में उन्होंने इस प्रकार की सुदृढ़ नीति बनाई कि उन्होंने अफ़गानिस्तान और मंगोल्स के आक्रमणकारियों को नियंत्रित किया, उन्हें भी भारत पर आक्रमण करने से रोक लिया और अपने सूबेदारों को भी उन्होंने नियंत्रित किया। In the early years of the 13th century, the sultans of Delhi ruled from garrison city. They also had little control over hinterlands. They had to depend on trade, taxes, or plunder for the logistic requirement of garrison cities. Because the tribal used to revolt even now and then, they refused to offer supply of food grains and arsenic materials, some iron ores and all that. So they find it quite difficult to control the hinterland also. Controlling garrison town in distant Bengal and Sindh were extremely difficult. This is on account of the climate. This is on account of the swamps which have developed across the river Ganges. The Sultanate had to constantly face the invader of Afghan and Mongolia and their Subedar also. During the rule of Ghiyasuddin Balban and Alauddin Khalji, Sultanate rule was consolidated. They devised such a policy so as to develop a huge army. They have a perfect control upon their Subedar and other officials. They have a complete vigilance over their administrative setup, and by doing so, they were able to keep on control over this territory for more than 150 years to 300 years. पहला अभियान, सल्तनत का विस्तार, कैंपेन ऑफ सल्तनत। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में पहला अभियान सल्तनत की भीतरी सीमाओं में चलाया गया। गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी शहर की स्थिति को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य था। देखिए, जो भी पहला सुल्तान आया, गयासुद्दीन बलबन आया या अलाउद्दीन खिलजी आए या मोहम्मद तुगलक आए, उन्होंने सबसे पहले अपने राजधानी के चारों ओर के इलाकों को मजबूत करना शुरू किया। उन्होंने सिरी, जहांपना, तुगलकाबाद, इस प्रकार से नए गैरिसन शहर बसाए और उन गैरिसन शहर को आधुनिक हथियारों से उन्होंने लैस किया। इसके लिए उन्होंने गंगा यमुना दो आपके जितने भी जंगल थे उसको उन्होंने कटवा दिया और उसको उन्होंने कृषि में परिवर्तित कर दिया। वहाँ रहने वाले आदिवासियों को उन्होंने वहाँ से खदेड़ दिया और वहाँ से उन्होंने भगा दिया, उन्होंने निष्कासित कर दिया। और व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार को सुदृढ़ करने के लिए भी उन्होंने अलग अलग उपाय योजना की। तो मैं पढ़ के बताता हूँ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में चलाया गया ये पहला अभियान गैरिसन शहर की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी शहरों की स्थिति को मजबूती लाना इसका पहला उद्देश्य था। गंगा यमुना के दो आप से जंगलों को साफ कर वहाँ से शिकारी, संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावास से निष्कासित कर दिया। उन क्षेत्रों पर कृषि को प्रोत्साहित कर दिया, यानी किसानों को वहाँ पर उन्होंने बसाना शुरू किया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के लिए नए किले, गैरिसन शहर और नए शहर बनाए और बसाए गए। The first set of campaign along the internal frontier of Sultanate
aimed at consolidating the hinterlands of the garrison towns. In the Ganga Yamuna Doab, forests were cleared, hunter gatherers and pastorals were expelled from their habitat. Agriculture was encouraged in those areas to feed a large troop for the protection of trade routes and advancement of regional trade. New forts, garrison cities, and new cities were built and settled like Siri, Jahanpana, तुगलकाबाद. सल्तनतकालीन दूसरा अभियान. सल्तनतकालीन दूसरा अभियान बाहरी सीमा पर हुआ. अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत में उन्होंने कई सैन्य अभियान चलाए. यानी उत्तरी इलाका उन्होंने अपना संरक्षित करने के बाद सुल्तानों ने अपना ध्यान दक्षिण की ओर फैलाया और दक्षिण के बहुत सारे साम्राज्यों को उन्होंने हराया. उनमें से होयसला साम्राज्य एक साम्राज्य था. मोहम्मद तुगलक ने इसको जारी रखा. यहाँ पर सूबेदारी प्रथा यानी इक्तदारी प्रथा उन्होंने लागू की. भारत का अधिकांश भाग 15वीं शताब्दी तक इनके नियंत्रण में आ चुका था. ये देखिए इस मानचित्र में आप देख सकते हैं दिल्ली से कई सैन्य अभियान चलाए. ये सारे के सारे अभियान सुदूर पूर्व दक्षिणी इलाकों में थे जो कि सल्तनत का बाहरी इलाका कहलाता था. Second campaign. The second expansion of Sultanate took place on the outer border. During the reign of Alauddin, he undertook several military operations in South India. Muhammad Tughlaq continued this operation further. Subedari system, or we can say Iqtidari system, were implemented here. Most of India had come under the control by the end of 15th century. Thus, the expansion of the Sultanate continued to roll on until 15th or 16th century until the Babur invaded India. मस्जिद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है अल्लाह की आराधना में सजदा करना. मस्जिद एक स्थान है जहाँ पर इस्लाम अनुयायी अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं. उस स्थान को हम मस्जिद कहते हैं. सजदा का अर्थ है ज़मीन पर घुटने के बल पर माथा भूमि पर टेकना. घुटने के बल पर बैठना और माथा भूमि पर टेकना, उसको हम सजदा कहते हैं. इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग मस्जिद में एकत्रित होकर मक्का की दिशा की ओर मुँह करके नमाज अदा करते हैं और वो दिशा किबला कहलाती है. यानी जिस दिशा की ओर मुस्लिम अनुयायी मुँह करके खड़े होकर नमाज अदा करते हैं या सजदा करते हैं, उस दिशा को हम क्या कहते हैं? किबला. मक्का की ओर दिशा की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है. Masjid is an Arabic word which means a place where Muslim prostrates or sajda in reverence to Allah. Sajda means to kneel on the ground, and to touch the ground with forehead. People who follow the religion of Islam gather in the mosque, pray towards the direction of Mecca and offer namaz. That direction is called Qibla. Qibla is the direction where the Islamic holy city Mecca is situated. All the Mohammedans faces towards Mecca and offers sajda to their Allah, and that particular direction is called Qibla. From India it is on the western side. The direction towards Mecca is called Qibla.
अब हम कुछ मस्जिदों के बारे में बात करेंगे। ये देखिए, ये कुव्वत अल जामी, ये कुव्वत अल जामी मस्जिद है। कुव्वत अल जामी मस्जिद है ये मस्जिद जामा मस्जिद कहलाती है, जो कि दिल्ली में स्थित है। 12वीं शताब्दी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद और जामा मस्जिद दिल्ली के पहले सुल्तानों के द्वारा बनाई गई मस्जिद है। ये मस्जिद दिल्ली एक कोना में स्थित है, यानी पुरानी दिल्ली में स्थित है। इन मस्जिदों का विस्तार शमशुद्दीन इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने किया। इसके आसपास की मीनारों का निर्माण और विस्तार 3 सुल्तानों ने किया। उनके नाम हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो यहाँ पे दिल्ली एक कोना में जो मस्जिद है, 2 मस्जिदें स्थित है, एक कुव्वत इस्लाम और दूसरा है जामा मस्जिद। और इन दोनों मस्जिदों का निर्माण इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खलजी ने किया। और जो मीनारें बनाई गई है, उन मीनारों का निर्माण और विस्तार 3 शासनकाल में हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक, शमशुद्दीन इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। The Quwwat al-Islam Mosque and Jama Masjid, built in the last decade of 12th century, are the mosques built by Sultans of Delhi. These mosques are located in Delhi Ek Kuna. The renovation of these mosques were expanded by Shamsuddin Iltutmish and Khalji. Similarly, the minarets around it were renovated by 3 sultans, Qutbuddin Aibak, शमशुद्दीन इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। ये बेगमपुर की मस्जिद है। ये मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में उनकी नई राजधानी जहांपनाह में मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई। दिस वॉज अ बेगम मस्जिद। इट वॉज बिल्ड एज द मेन मॉस्क इन हिज न्यू कैपिटल जहांपनाह इन दिल्ली ड्यूरिंग द रेन ऑफ मोहम्मद तुगलक। ये मोट मस्जिद है, जो सिकंदर लोदी के शासनकाल में उनके मंत्रियों के द्वारा बनाई गई। ये भी दिल्ली में है। मोट की मस्जिद बिल्ट इन द रेन ऑफ सिकंदर लोदी बाय देयर मिनिस्टर्स। इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हुआ। हम आइए अभी हम देखते हैं कि ये अभी तक हमने क्या सीखा। किबला किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय किबला? मक्का की ओर की दिशा को किबला कहते हैं। द डायरेक्शन टुवर्ड्स मक्का वेयर ऑल द मुस्लिम ऑल द मोहम्मदियन स्टैंड एंड ऑफर सजदा इज कॉल्ड मक्का। मोहम्मद तुगलक ने कौन सा शहर बसाया? विच सिटी वॉज सेटल्ड बाय मोहम्मद तुगलक? आंसर क्या है? जहांपनाह। दिल्ली स्थित कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई? हु हैड बिल्ड द मॉस्क कुव्वत अल इस्लाम? उत्तर क्या है? इल्तुतमिश। तवारीख का क्या अर्थ है? व्हाट डू यू मीन बाय तवारीख? तवारीख मीन्स हिस्ट्री, यानी इतिहास। तवारीख का मतलब क्या है? इतिहास। तो इस तरह से हमारा ये भाग दूसरा पूर्ण हुआ। आप इसके मुख्य मुद्दों को एक बार फिर से पढ़िए, इस पर आप नोट्स बनाइए, अपनी क्लासबुक में नोटबुक में उतारिए और इसको याद भी कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।